Yes, sir. Yes. ওকে, আচ্ছা সত্য আপনি এখানে আছেন, আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি, এটা কাদের ক্লাস? এটা ক্লাস 11 এর না 12 পাসের ক্লাস? কেননা হ্যালো, অ্যাকচুয়ালি স্যার এটা মেনলি 11 এরই ক্লাস, ঠিক আছে, কিন্তু যারা 13 যারা 12 পাসের আছে ওদের তো এই ক্লাসগুলো করতেই হবে, আর ওরা এগুলো খুব একটা ভালো করে হ্যাঁ। ডিটেলসে জানেও না জিনিসগুলো, তো এই জন্য আমি আচ্ছা, ওদের বলেছি করে নিতে। আজকে কি হয়েছে, আই থিঙ্ক একটু কনফিউশন হয়েছে, বিকজ আমি 12 পাসের যারা নতুন গ্রুপটা ছিল, সরি 11 এর, হুম, তাদেরকে আমি মেসেজ করেছিলাম, এবার আমি ভেবেছি এটা ওদেরই ক্লাস, হুম। কারণ 11 এর যারা ফার্স্ট ব্যাচ তাদের তো এটা পড়ানো হয়ে গেছে, আমিই পড়িয়েছিলাম, ন্যাচারালি আমি তাদেরকে মেসেজ করিনি। আর 13 এর যে এটা পড়াতে হবে, বা 13 রা কি এর ফার্স্ট ক্লাসটা আমার সঙ্গে করেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছে করেছে স্যার, আচ্ছা, ওকে ফাইন, ঠিক আছে। ওরা লিভিং ওয়ার্ল্ডও করেছে। লিভিং ওয়ার্ল্ড করেছে, ওকে ফাইন, ইফ দে হ্যাভ ডান ইট গুড। মানে ওরা অ্যাকচুয়ালি 11 কেন বলেছে আমি, ওরা অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো ভালো করে জানে না, বুঝলেন একদম তো, তো কমন, ইট মেক্স আ লট অফ সেন্স, ঠিক আছে, একদম ঠিকঠাক আছে, ওই ব্যাপারটা কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি শুধু একটা জিনিস নিয়েছিলাম যে, তার মানে ধরুন এই ক্লাসগুলো যখন আমি পাবো, তাহলে লিঙ্ক গুলো কাদের কাদেরকে পাঠাবো সেটা আমাকে জানতে হবে। ওই 3টে গ্রুপে, ওই 11 এর 2টো গ্রুপে পাঠাবেন এটা, কারণ 11 এর যারা আগে করেছে না তাদেরও কয়েকজনের মিসিং আছে, কয়েকজনের মিস করে গেছে, ওরা পরে ভর্তি হয়েছিল না, হ্যাঁ। ওই জন্য ওরা একসঙ্গে করে নেবে। ওকে ফাইন, ঠিক আছে, তাহলে স্টার্ট। আমি তারপরে আপনার ম্যাচটা দেখে আমি তারপরে আবার কনভে করে দিয়েছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখি, 7:30 থেকে। আমি নিজেও সেটা বুঝতে পারিনি, ঠিক আছে। ওকে, লেটস স্টার্ট এভরিওয়ান। या सो इन द लास्ट क्लास वी हैड टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, हमने कुछ क्राइटेरियाज देखे थे। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइलम्स। द फर्स्ट फाइलम दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इज पॉलीफेरा। अच्छा एवरीवन, एक काम करो, एक कॉपी ले लो, टेक अ कॉपी, जस्ट वेट, लेट मी शो यू, जस्ट वेट। कॉपी में, कॉपी को ऐसे डिवाइड करोगे, सपोज दिस इज योर कॉपी, देन ये दो पेजेस मिलके एक फाइलम होगा, ये दो पेजेस मिला के एक फाइलम होगा, वन सिंगल फाइलम विल हैव टू पेजेस इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोग लिखोगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट हैंड साइड में तुम लोग लिखोगे specific characteristics. On left hand side write general characteristics, on right hand side write specific characteristics, okay। हर फाइलम के ऐसे दो स्पेसिफिक अलग अलग पेजेस होंगे, एक में तुम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, एक में specific characteristics लिखोगे, so remember this। and another thing is, हर फाइलम में को पढ़ाने के बाद I'll revise it and I would like the students to answer, तो be very very attentive, जो की पॉइंट्स है हर जगह पर लिखते रहो। तो by the end of every phylum, suppose मैं पॉलीफेरा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पॉलीफेरा एंड होने के बाद I'll ask you questions so that you people can answer me, okay। तो इस तरीके से we'll move forward। so पहली बात जो है पॉलीफेरा, दोनों पेजेस में पॉलीफेरा लिख के रखोगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद पॉलीफेरेंस को पॉलीफेरेंस क्यों बोला जाता है, व्हाई इज पॉलीफेरा नोन एज पॉलीफेरा। तो ये नाम से ही तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलीफेरा है, व्हाई इज इट नोन एज पॉलीफेरा। कैन आई हैव क्लास 13 स्टूडेंट्स आंसर दिस, क्लास 13 स्टूडेंट्स। तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 12, सो टेल मी पॉलीफेरेंस को पॉलीफेरेंस क्यों बोला जाता है। স্যার এদের পোর্স বডি থাকে বলে। হ্যাঁ, পোরস থাকে, পোরাস, দে হ্যাভ পোরাস বডি, yes, so poriferans are known as porifera because it comes from the Greek word porous। porous matlab pores, and ferin means bearing, so these are pore bearing animals, these are pores bearing animals, ठीक है। अब हम पहले इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, उन्हीं चीजों को हम वी आर गोइंग टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ओवर देयर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा था हैबिट एंड हैबिटेट, तो ये जो पॉलीफेरेंस है मोस्टली दे आर
marine. They are mostly marine. They are attached to the rocks. कुछ fresh water में भी होते हैं, कुछ lakes में भी होते हैं. ठीक है. Next, level of organization. इनका cellular level of an organization है, cellular level. Multicellular organisms है, लेकिन cellular level of an organization. Okay. Germ layers. ये diploblastic organisms हैं, they are diploblastic. Okay. So these are the common, these are the general characteristics of something which we call the common characteristics. अच्छा, अब next point ये है कि इनमें body cavity है क्या? I'll come to that. Body cavity है कि नहीं? I'll come to that. Next, the thing is reproduction. Reproduction इनका sexually भी होता है, plus asexually भी होता है. ठीक है? Reproduction इनका sexually भी होता है, asexually भी होता है. Asexual reproduction occurs by budding. या फिर कुछ स्पेशल मासेस ऑफ सेल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं जेम्यूल्स. दीज आर नोन एज जेम्यूल्स. ठीक है. जेम्यूल्स या फिर इसको हम कहते हैं इंटरनल बडिंग. तो इस तरीके से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल ओवा और स्पर्मेटोजोआ बनता है. ओवम और स्पर्मेटोजोम बनता है और वहीं से इनका फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरन्स दे आर hermaphrodites. They're hermaphrodites. That means what? एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है. ठीक है. इसके अलावा कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे सिमेट्री. इनमें कोई सिमेट्री नहीं रहता है, सो दे आर एसिमेट्रिकल. दे आर एसिमेट्रिकल. यू नीड टू रिमेंबर दिस. ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. आई रिपीट माई सेल्फ. They are इनको they are known as poriferans because they are porous. They have porous body. They are pore bearing bodies. They have pore bearing bodies and hence they are known as poriferans. They are marine, cellular level of an organization. Asymmetric, diploblastic, sexual and asexual reproduction दोनों देखा जाता है. Asexual by gemmules and internal budding. Sexual by ova and spermatozoa formation. Clear? Now I come to specific characteristics. Specific characteristics जो इन्हीं मतलब सिर्फ इसी फाइलम में देखा जाता है, कहीं और में मिलेगा नहीं. तो यहाँ पर जो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं, दे हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज द वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. पहले हम वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं और उसके बाद विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. तो अगर सपोज करो कि ये उनका बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर मैं फिर से रिपीट करता हूं, सपोज दिस इज देयर बॉडी. सो ऑन द बॉडी दे हैव वेरी वेरी टाइनी पोर्स. ऐसे टाइनी पोर्स रहते हैं. राइट. These are small pores. In pores को हम कहते हैं ostia. These pores are known as ostia. और basically ostia से पानी, because they are marine organisms, ये पानी में रहते हैं. इस तरीके से through the ostia पानी एंटर करता है और एंटर करने के बाद एक बड़ा से कैनल में एंटर करता है पानी, which is known as they have a canal system inside, and this canal system it is known as spongocoel. So what did I say? छोटे छोटे pores हैं पूरे बॉडी में और the water it enters through the pores and then it enters a canal like structure which is known as spongocoel. और spongocoel water इस तरीके से enter करता है और निकलता कहाँ से है? You have another opening, another large opening in the spongocoel और उसको हम कहते हैं the osculum. So the pathway is ostia, वहां से spongocoel,
वहां से निकलता है थ्रू द ऑस्क्यूलम। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इनका, इसका फंक्शन क्या है? पहला जो फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के काम में आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पानी है, पानी के साथ काफी अच्छा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गैदरिंग अ फूड। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बॉडी से जब वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इस तरीके से बॉडी से निकलता है, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। So these are the major functions of the water vascular system that they have. Okay. अब यहाँ पर देखो, मैं फिर से और एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये दिस इज माई बॉडी, जस्ट वेट, दिस इज माई बॉडी, और इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे पोर्स रहते हैं which is known as the ostia। यहाँ से पानी एंटर करता है like this, और कहाँ पर एंटर करता है? into a large cavity or a channel which is known as the spongiocele। ये जो स्पॉन्जोसेल है इसको घेरे रखता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ऐसे। There are specialized cells which cover or line the spongiocele। इन स्पेशल सेल्स को हम क्या कहते हैं? These are known as the canal, these are known as the collar cells, या फिर जिसको हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। ठीक है। एक पॉइंट में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में भूल गया था, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लेना कि इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ये याद रखोगे। और ये वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके। नेक्स्ट, इनके बॉडी में, बॉडी के द बॉडी इट इज सपोर्टेड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज स्पाइक्यूल्स। या ये किस चीज से बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होता है, राइट। सो द बॉडी इट हैज स्पाइक्यूल्स और द स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये बॉडी को एक व्हाट कैन आई से, एक हार्डनेस प्रोवाइड करे। ये जो स्पाइक्यूल है, द स्पाइक्यूल इट इज मेड अप ऑफ calcium and silicon, and the spongin fibers, these are proteins। okay, these are proteins। okay, और दोनों ही mesenchymal region में रहते हैं, both of them they stay in the mesenchymal region। so this is very very important। और बाकी जो पॉइंट्स है वो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। दिस इज इन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें दिखता है। फर्टिलाइजेशन ये बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। मैं समझा रहा हूं, रुको। अच्छा, ये डेवलपमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज एक बच्चा, मतलब देयर इज अ यंग वन कुछ ऐसा दिखता है। सपोज द यंग वन लुक्स लाइक दिस, और ये बड़ा होने के बाद स्टार्ट्स लुकिंग लाइक दिस। तो तुम देख पा रहे हो कि इसका और इसका बेसिकली कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दे जस्ट डोंट अपीयर सिमिलर, कंप्लीटली एक डिफरेंट थिंग है। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब जो चाइल्ड है और जो मतलब जो यंग वन है और जो एडल्ट है, उनमें अगर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं रहता है, देन आई से इट्स एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है? सपोज एक बच्चा है,
वो ऐसा दिखता है, और यही जब बड़ा हो जाता है ये कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट होता है. So basically the adult is basically resembling the young one. Because the adult is resembling the young one, this is known as direct development. So indirect matlab the adult does not resemble the young one, and direct development means the adult is resembling the young one. Okay, so this is very very important. And poriferans में indirect development होती है क्योंकि जब वो when they are young ones, that's known as the larval stage, right? And the larval stage is completely distinct and separate from the adult. Okay, I'm not giving you examples on purpose, because examples मैं जब तुम लोगों को दे दूंगा तब तुम लोग और इसको खोल के नहीं बैठोगे. So what you need to do is that you need to open your books and fill in the examples over here. ये तुम्हारा duty है कि write the examples over there. I'll be asking you examples in the next class of this phylum. Anyway, so before I go into the next phylum, let me ask you certain questions. तो पहला question यही है कि poriferans को poriferans क्यों बोला जाता है? Why are poriferans known as poriferans? बताओ. So because they are pore-bearing animals. Yes. Let's go into the common characteristics. कौन सा level of organization है? So cellular level of Cellular level. Okay. Symmetry. asymmetric. Asymmetrical. Okay. Body में coelom है क्या? Does the body have any coelom? No, they are diploblastic organisms. No, sir. They're not supposed to have coelom. Okay. Plasticity मैंने बोल दिया कि diploblastic. Digestive system नहीं है. What type of digestion occurs over here? So intracellular. Circulatory और respiratory system है क्या? Do they have a true circulatory and a true respiratory system? No. No, Okay. sir. Okay. Acha. What about the reproduction? Reproduction is Sexual one and asexual. Okay. Asexual reproduction कैसे होता है? Budding. So asexual by budding. Okay. कभी-कभी Budding. fragmentation भी होता है. कभी-कभी ये लिख सकते हो कि कभी-कभी fragmentation भी होता है. और sexual reproduction कैसे होता है? Ovis fragmentation and Sexual. so ova and spermatozoa. So by formation of gametes. Yes. Acha. Fertilization internal or external? Internal. internal. Development direct or indirect? So indirect. ये हो गए हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम चले आते हैं इनटू द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इनमें एक बहुत स्पेशल सिस्टम रहता है जिसको हम कहते हैं डैश. क्या है? व्हाट इज दैट? Water transport mechanism. Water transport system. यस, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और द कैनल सिस्टम जिसको हम कहते हैं. तो अगर ये बॉडी है तो बॉडी के ऊपर ऐसे टाइनी 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 पोर्स रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Ostia. ऑस्टिया. ऑस्टिया. ऑस्टिया से पानी एंटर करता है तो बीच में एक चैनल रहता है या कैनल रहता है जिसके अंदर वो पानी चला जाता है. उस कैनल को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील. और स्पॉन्जोसील के बाहर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जोसील को घेरे हुए रखते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? Collar. और कॉलर सेल्स और Choanocytes. क्वानोसाइट्स. राइट. और स्पॉन्जोसील से होते हुए पानी निकलता कैसे है? एक लार्जर ओपनिंग रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Osculum. ऑस्क्यूलम. ठीक है. और ये जो पूरा वाटर वास्कुलर सिस्टम है इनका, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? गिव 3 फंक्शंस. So respiratory exchange, gathering of food and removal. Gathering of food, removal of waste. ओके, करेक्ट है. और इनमें एक स्केलेटल सिस्टम रहता है जो बॉडी को सपोर्ट करे हुए रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब वो किस चीज से बना हुआ होता है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? Calcium and silicon. कुछ सुनना ही नहीं दिया मुझे. So spongy. Calcium and silicon. कैल्शियम और सिलिकॉन से क्या बनता है? उस चीज को हम क्या कहते हैं? Spicicles. Spicules.
They are known as spicules. और एक फाइबर रहता है इनमें. What is that? Sponge fiber. Spongial That fiber. would be Spongial. ठीक है. तो ये हो गया हमारा we have finished all the characteristics of porifera. जितना बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ो. बहुत सारे बुक्स में बहुत ज्यादा दिया है. इनफैक्ट हमारे मॉड्यूल में भी थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है. You don't need to read that. जितना मैंने बोला है उसको ट्रस्ट करके उतना ही पढ़ोगे, वहीं से क्वेश्चंस आएगा. रिमेंबर दिस. एग्जांपल्स अच्छी तरीके से पढ़ोगे. मैंने एनसीईआरटी को फॉलो मेनली किया है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इधर उधर एक्स्ट्रा बोला है. जितना एक्स्ट्रा बोला है बस उतना ही पढ़ोगे. उससे ज्यादा बहुत सारे बुक्स तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा भी वहां पर लिखा हुआ रहेगा. यू डू नॉट नीड टू स्टडी दैट एंड यू विल नॉट स्टडी दैट. इज दैट क्लियर एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. I do not want you to study Yes, sir. anything else other than what I am teaching you. Right? मेरा क्लास कर रहे हो तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ोगे. और हम ट्राई करेंगे, बिकॉज ये एक समझने का चीज कम है, याद रखने का चीज ज्यादा है. हम ऐसे ओरली इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे सो दैट बाय द एंड ऑफ द क्लास तुम्हारे पास एक विजन रहे इस चैप्टर को याद करने के लिए. या फिर प्लांट किंगडम मैं नहीं पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम, लेकिन फिर भी प्लांट किंगडम पढ़ोगे या फिर जो there is another chapter animal classification जब पढ़ोगे तब classification of organisms जब पढ़ोगे तब ये points कॉपी को इस तरीके एक छोटा कॉपी बनाओगे जहां पर सिर्फ ये क्लासिफिकेशन के 3 चैप्टर्स तुम लिख के रखोगे. और you'll have to have 2 pages to it. एक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर किसी में थोड़ा विद सम अमाउंट ऑफ चेंज सब में कॉमन रहता है, और रहता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब वो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तब वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन है. यू नीड टू नो देम properly. Okay, now let's move on to the next phylum, which is known as the phylum Coelenterata. अच्छा, पॉलीफेरेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. Any problem, anyone? No, sir. No. Okay. अच्छा, Coelenterata को निडारिया भी बोला जाता है. They are also known as the nidarians. तो पहली बात हर फाइलम में हम यही पहले पढ़ेंगे कि इनको निडारियंस के Coelenterata मतलब जो इस फाइलम का नाम है इसको ऐसा क्यों बोला जाता है. सो व्हाई आर दे नोन एज निडारियंस? Nidarians, it is also coming from the Greek word which is nide. It is coming from the Greek word, it's derived from the Greek word which means nide. और nide का मतलब होता है stinging cells या poisonous cells. राइट, इनमें स्टिंग सेल्स या पॉइजनस सेल्स है. और Coelenterata दे आर सैक लाइक एनिमल्स. बस्ता की तरह दिखता है. सो दे आर सैक लाइक एनिमल्स. ओके, so this is the reason why they are known as Coelenterata and they are known as nidarians. Okay, अब हम करते हैं वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं. और कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? पहले वाले में सेल्यूलर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन था. इसमें क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ एन. यस, टिश्यू. तो यहां से टिश्यू स्टार्ट होता है. टिश्यू लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ब्लास्टिसिटी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक है तो फिर डिप्लोब्लास्टिक है तो इन्हें क्या कहते हैं उसको? सीलोम रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा. नहीं Sir, रहेगा. non-coelomic, sir. Yes, acylomate. And digestion इनका दोनों टाइप का रहता है. Digestion is extracellular plus intracellular दोनों. ठीक है. या मोर और लेस यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन भी इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. दे हैव बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वही I'll come to कैसे सेक्सुअल किसमें दिखता है, एसेक्सुअल किसमें दिखता है. मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ.
लेट्स गो इनटू द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट. अच्छा, हर फाइलम में जब हम उसको बोलते हैं कि इसको ये क्यों बोला जाता है, व्हाई इज इट नेम्ड सो, सो दिस इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. तो ये याद रखना पड़ेगा. तो एक फाइलम को उस नाम से क्यों जाना जाता है वो जब हम पढ़ेंगे, दैट कम्स इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो पहला जो है वही हम पढ़ते हैं कि निडारियंस, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड नीडोब्लास्ट. ये टर्म ही आता है नीडोब्लास्ट से आता है, ठीक है. और देखो ये आई हैव सेड दैट दे हैव अ सैक लाइक बॉडी. आई शुडंट ड्रॉ इट लाइक दिस, बट व्हाटएवर एक रफ में ड्रॉ कर रहा हूं. तो इनमें कुछ ऐसा स्लेंडर, ऐसे टेंटाकल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. सो दे हैव टेंटाकल लाइक स्ट्रक्चर्स. और they have tentacle like structures. और क्या याद रखना पड़ेगा कि इनमें स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स रहते हैं. ये जो नीडोब्लास्ट, निडारियन जो है, ये टर्म has come from the nidoblast. Nidoblast, they are made up of nidocytes. The nidarians have nidoblast. Nidoblast is made up of nidocytes. What are nidocytes? They contain stinging capsules. They contain stinging capsules. Or where are these present? These are present on nematocytes. They're present on nematocytes. और ये nematocytes किसके ऊपर रहते हैं? यही ये जो मैंने अभी tentacles draw किए हैं उनके ऊपर रहते हैं. तो tentacles के ऊपर nematocytes, उसके अंदर रहता है stinging capsule. Stinging capsules made up of nidocytes. Nidocytes made up of nidoblast. Clear? और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? निडारिया कहते हैं. Have you understood any problem? Any problem understanding? Yes, sir. Okay. So ये जो this nematocyst, the stinging cells. Remember one thing: these stinging cells are the unique feature of the nidarians, right? जब stinging cells ऐसे what can I say? जब stinging cells stimulated होते हैं तब वो एक nematocyst या स्टिंगिंग ऑर्गन को रिलीज करते हैं. थ्रेड लाइक नेमेटोसिस्ट को बॉडी से रिलीज करते हैं. और तब कैसा होता है मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को. सपोज ये एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर तुम्हारा टेंटाकल है, वहां पर तुम्हारा व्हाट कैन आई से नेमेटोसिस्ट है, ठीक है. सॉरी, नेमेटोसिस्ट नहीं, यहाँ पर तुम्हारा स्टिंगिंग सेल्स है. तो स्टिंगिंग सेल्स में जब स्टिम्युलस आता है तब सडनली दे शूट आउट. इस तरीके से एक शूट आउट, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शूट आउट करते हैं. और यहाँ पर अगर कोई प्रे रहता है, अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये चीज क्या करते हैं, इसको ऐसे मास्क कर लेता है और अपने तरफ खींच के अपने अंदर घुसा लेता है. दिस इज व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी. और एक चीज याद रखोगे कि ये व्हेन इट इज रिलीजिंग, it releases something which is known as a hypnotoxin. There is a toxin which is known as hypnotoxin. नाम से समझ में आ रहा है, hypnotize करता है. It hypnotizes the prey या फिर paralyze कर देता है. It paralyzes the prey और करके वो अपने आप अपने अंदर. Okay. So I'll repeat myself. Nidarians are known as nidarians because they have specialized cells which are known as the nidoblasts. Which contain the stinging capsules. जब stimulate होता है तब ये क्या release करता है? The nematocysts. And these nematocysts, overall they are present on the tentacles, and when required they are they are being released. वो prey को क्या कर, ऐसे मतलब ये normally अंदर रहता है, ये shoot out होके prey को ऐसे घेर के अपने तरफ ले आता है. और वो तब अपने बॉडी से क्या रिलीज करता है? एक हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करता है. एक हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करता है जो पैरालाइज कर देता है. सो रिमेंबर दिस. दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. यस अश्मिता.
So what does it shoot out? What does it shoot out? It shoots out a thread like structure. उस thread like structure को ही nematocyst कहते हैं. Stinging capsule जब stimulated होता है, तो stinging capsule ये normally कुछ ऐसा है. अच्छा मेरे तरफ देखो, look at me. सपोज करो कि यहाँ पर ये पेन है, तो मुझे जब पेन को मेरा हाथ ऐसा है, तो मुझे जब पेन को पकड़ना है, मेरा हाथ स्टिमुलेटेड होता है, आई शूट आउट माई हैंड, आई टेक इट एंड ब्रिंग इट टुवर्ड्स मी. ऐसा ही, दिस इज द मैकेनिज्म. पहले ये बंद रहता है इनसाइड द नीडोसाइट्स और द स्टिंगिंग कैप्सूल, एंड व्हेन स्टिमुलेटेड दिस शूट आउट द नेमेटोसिस्ट्स, एंड द नेमेटोसिस्ट्स होल्ड दिस, इसको हिप्नोटाइज करके, पैरालाइज करके अपनी तरफ इस तरीके से खींच के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है. क्लियर? So sir, what is the difference between nematocysts and hypnotoxin? Hypnotoxin is a toxin. Nematocyst release करता है hypnotoxin. Nematocyst is a thread like structure, and hypnotoxin is a chemical. That thread like structure is releasing the chemical so that the pig can be paralyzed and it cannot go out, it cannot move around, it can be paralyzed होके वहीं पर बैठ जाता है, hypnotized हो जाता है और वो अपने तरफ उसको खींचने में easy हो जाता है. So that is why I say that these are poisonous cells or stinging cells. Sting मतलब poisonous, और nettle cells कहते हैं इसको, या poisonous cells कहते हैं इसको. Not true poisons but toxin producing cells. Clear? So hypnotoxin is produced inside the body after it is Inside captured. those nematocysts, no, they're always produced, but they're not released. They're released after the capture. Okay. अच्छा, अब देखो इनका जो बॉडी है, they have a central gastrovascular cavity. This is another. बॉडी कुछ ऐसा दिखता है, बॉडी में एक ही ओपनिंग रहता है. So they have a mouth which, this mouth मैंने ये पहले भी बताया था, they have a sac-like body, they have a blind sac type of a body plan. यहीं से फूड एंटर करता है, यहीं से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है, और ये जो माउथ है, we call this the hypostoma or the hypostome. So the body has a single opening which behaves as the mouth and then anus, and that is known as the hypostome. ठीक है, और या कुछ सब में नहीं दिखता है, कुछ corals में, in some corals you see that the body has a skeletal type of a structure which is made up of calcium carbonate. तो बॉडी को एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है. अच्छा, very important feature about them is generally इनके दो बॉडी के फॉर्म्स होते हैं. Generally they have two body forms. The first type of a body form is known as polyp, and another one is known as medusa. पहला जो है उसको हम कहते हैं पॉलिप, सेकेंड टाइप जो है उसको हम कहते हैं मेड्यूसा. पॉलिप जो है ये ऐसा सिलिंड्रिकल रहता है, पॉलिप जो है वो ऐसा सिलिंड्रिकल रहता है, और मेड्यूसा जो है वो ऐसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है. एक चीज याद रखने लायक है, अम्ब्रेला है तो बॉडी का जो माउथ है, दोनों के माउथ के पोजीशन में डिफरेंस है. पॉलिप में ऊपर ही माउथ रहेगा, और यहाँ पर एंटीरियर इस रीजन में माउथ रहेगा. सो यू अंडरस्टैंडिंग दैट वन इज अम्ब्रेला शेप, द मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप एंड द पॉलिप इज सिलिंड्रिकल. पॉलिप जो है वो एक जगह पर बैठा रहता है, इट इज सिसाइल, एंड द मेड्यूसा इट इज फ्री स्विमिंग. So what does sessile mean? Sessile means it is anchored to a specific position. एक जगह पर बैठा रहता है, मूव नहीं करता. It is anchored to a specific position. और इसीलिए उसका बेस जब नीचे है, उसके माउथ को ओपन होना पड़ेगा, इसीलिए माउथ ऊपर की तरफ है. और जो मेड्यूसा है
बिकॉज इट कैन फ्रीली स्विम, उसको प्रोटेक्शन के लिए बॉडी एक अम्ब्रेला शेप ले लेता है और माउथ नीचे की तरफ होता है. You can see the shape, right? I'll give you examples. यहाँ पर I'm bound to give examples. एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल्स तुम लोग खुद सर्च करके लिखोगे. Very common one is Hydra. Okay? Medusa तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जेलीफिश. Aurelia. Now, why am I giving you these examples? Because कुछ ऐसे organisms हैं जिनमें polyp और medusa दोनों होते हैं. You know, there are certain organisms which can live or which can occur in both the formats. Generally, जो तुम्हारे Cnidarians होते हैं, they are either in the polyp format or they are in the medusa format, right? Either वो polyp होते हैं या फिर medusa होते हैं. But कुछ ऐसे organisms हैं which occur in both the polyp and the medusa format. Example है Obelia. This is one example, and because वो polyp से medusa बन सकता है और फिर medusa से polyp भी बन सकता है, so polyp to medusa वो बन सकता है और again medusa to polyp भी बन सकता है. इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं alternation of generation. This is known as alternation of generation. Medusa जो है वो sexually reproduce करके polyp बनाता है और polyp जो है वो asexually reproduce करके medusa बनाता है. Polyp asexually reproduce करके medusa बनाता है, medusa sexually reproduce करके polyp बनाता है. This is seen in Obelia. Because Obelia can exist in both the formats, polyp and medusa both, it can alternate. This is known as the alternation of generation. In a single word, this mechanism is known as metagenesis. This process is known as metagenesis. Clear, everyone? Any doubt? No doubt. Okay, so let's start revising this. तो Coelenterata या फिर Cnidarians को Cnidarians क्यों बोला जाता है? Let's revise this. Tell me. Because they have stinging cells. Yes. Okay. Now let's go into common characteristics. कहाँ पर रहते हैं? Their habitat. Marine. Marine, mostly marine. They're aquatic. Okay. Symmetry. What type of symmetry? Symmetrical. No, they're radially symmetrical. They have Yeah, radial. Yeah, they have radial symmetry. Coelom है कि नहीं है? No, sir. What type of plasticity? Diploblastic. Diploblastic. Digestive system. Digestion किस type का होता है? External. Okay, body plan. Sac-like. Blind Blind. sac. Okay, so digestive system complete or incomplete? Incomplete. Incomplete. True circulatory system या true respiratory system है क्या? Do they have a? No, sir. नहीं है. No, sir. नहीं है. Okay, now I come to the specific characteristics. Cnidarians, they get their name from dash. Cnidoblast cells. Cnidoblast, they contain certain capsules which are known as Sting. sting capsules. String capsule. या उसको और क्या बोला जाता है scientific name? Cnidocytes. Okay, जब ये when these get stimulated, they release
a thread-like structure. What is that known as? Nematocyte. Nematocyst. Nematocyst. And Tentacle. these are ये And- पूरा कहाँ पर रहता है, किसके ऊपर रहता है? टेंटेकल के ऊपर रहता है. अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था, ये याद रखना पड़ेगा. ये जो तुम्हारा न्यूरोब्लास्ट, इसके तीन मेन रीजन फंक्शंस है. देखो, जब एक पॉलिप बैठा हुआ है तो उसको सपोर्ट देने की जरूरत है. कैसे बैठा हुआ रहता है? It cannot move, so it is required in anchorage. It is required in anchorage. It is required for capturing of the prey, and it is also required for defense. क्योंकि ये खुद को प्रोटेक्ट करने में भी काम आता है. So it's required for anchorage. It is required for capture of the prey, and it is also required for the defense mechanism. These are the three functions. Okay. इनमें एक special. हाँ. So what's the third function? Defense. No, I mean the first function. Anchorage. Anchorage. वो पकड़ के रखता है उस ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेटम के ऊपर. ठीक है. तो इनमें एक स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रहता है, उसमें एक ही ओपनिंग रहता है. उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज इट नोन एज? Hypostome. Hypostome. हाइपोस्टोम कहते हैं. ठीक है. और कुछ कुछ कोरल्स में स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है. किस चीज से बना हुआ होता है वो? Calcium carbonate. Calcium carbonate. Calcium carbonate. बॉडी के दो फॉर्मेट्स होते हैं. वो क्या है? So polyp, medulla. Poly and medulla. दोनों में डिफरेंशिएट करो. Polyp cylindrical and medulla umbrella structure. Medulla. Okay. पॉलिप का माउथ कहाँ पर रहता है और मेड्यूसा का माउथ कहाँ पर रहता है? So polyp Polyp- upward, medulla downward. ओके. कौन सा मूव कर पाता है और कौन सा मूव नहीं कर पाता है? तो पॉलिप ही मूव कर पाता है, मेडुसा नहीं. पर मेडुसा कर मेडुसा- पाता है, पॉलिप ही नहीं कर पाता है. हाँ, पॉलिप नहीं कर पाएगा और मेड्यूसा कर पाएगा. Yes. ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है क्या जिसमें पॉलिप मेड्यूसा दोनों दिखते हैं? Yes, ओबिलिया. Obelia. इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं कि वो पॉलिप से मेड्यूसा बन पाता है, मेड्यूसा से पॉलिप बन पाता है? Alteration of generation. Metagenesis. मेटाजेनेसिस. Or metagenesis. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और करेक्ट है. ठीक है. एनी डाउट? दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. एनी डाउट एनीवन? No, No, sir. ठीक So है. alteration of generation and metagenesis is the same thing. या एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. अब हम थर्ड, आज हम टोटल 5 फाइलम्स करेंगे. हम थर्ड फाइलम में जा रहे हैं. द थर्ड फाइलम इज नोन एज फाइलम टीनोफोरा. तो वही क्वेश्चन खुद को पूछना पड़ेगा कि हम टीनोफोरा को टीनोफोरा क्यों बोलते हैं. ये टीनोफोरा, इट हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड टीन. और टीन का मतलब होता है को. It has come from the word teen, जिसका मतलब होता है कोम. कोम, जैसे कोम रहता है. ऐसा. ठीक है. मैंने यहाँ पर 6 ड्रॉ किए, इनमें 8 रहता है. They have 8. अच्छा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ. खैर, ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. Did I draw it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कोम जैसा रहता है, तो they have such plates. ऐसे 8 एक्सटर्नल कोम प्लेट्स रहते हैं और उसके ऊपर ऐसा सीलिया रहता है. So they have ciliated. They have 8 external rows of ciliated comb plates. मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. So they have 8 external rows of ciliated comb plates. Right? और इनको टीनोफोरा इसीलिए बोला जाता है because
दे आर comb bearing structures. इनको और भी नाम से जाना जाता है because they are also known as sea walnuts, right? जैसा भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. There's something which is known as pleurobrachia which absolutely looks like this, sea walnut की तरह, या फिर इनको comb jellies भी बोला जाता है. These are known as comb jellies. ठीक है. Now I come to the common characteristics. Common characteristics में पहली बात है marine, radially symmetrical, diploblast, tissue level of an organization. डिप्लोब्लास्ट है तो कोई सीलोम डेफिनेटली नहीं है. सेगमेंटेशन बॉडी में नहीं है. डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है. सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. रिप्रोडक्शन, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेम है. एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस रहते हैं जनरली. और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है. और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा फॉर्म होता है, वहां से फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. समझ में आ गया सबको? दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ आई विल. यस, So can you repeat once again? हाँ लिखा हुआ है इसमें. मरीन ऑर्गेनिजम्स, रेडियल सिमेट्री, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ना अपने कॉपी में लिख के रखोगे कि यू नो क्या कहते हैं उसको, habitat, symmetry, plasticity, level of organization, coelomate or acoelomate, segmentation, digestion, circulatory system. सिर्फ टिक या क्रॉस या फिर डिप्लो या फिर टिश्यू लेवल ऐसे जस्ट पॉइंट्स ऐड करते हुए रहो. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये चीजें हमने अलग अलग से पढ़ लिए थे. सिमेट्री हमने अलग से पढ़ा था, प्लास्टिसिटी अलग से पढ़ा था, लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अलग से पढ़ा था, सीलोमेट एसिलोमेट अलग से पढ़ा था, सेगमेंटेशन अलग से पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग से पढ़ा था. सब कुछ पढ़ लिया है. सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स ऐड करना है. तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये इस फाइलम को डिफाइन नहीं करता. ओके, So what is the digestive system? सॉरी, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सर टिश्यू के बाद इनकम्प्लीट. हाँ, सर टिश्यू के क्या बाद बोल रहे? सर टिश्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? বিশেষ কি বলছো আমি না একদম বুঝতে পারছি না. टिश्यू के बाद वाला पॉइंट क्या है सर? Can you write it? हेलो हाँ पीयूष So बोलो. issue what have you written? मुझे एक्चुअली कुछ किसी का भी बात सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो. सर टिश्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? टिश्यू के बाद लिखा है सीलोम. सर they do not have any coelom, they are acoelomate organisms. ठीक है, टेक टाइम लेके लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ. So actually my pen ran out of ink. So ओके, जस्ट राइट, टेक योर टाइम एंड राइट. हो जाए तो मुझे बोलो. हो गया. हो गया, ठीक है. अब yes sir. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एक तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इनमें वो कोम्ब प्लेट्स रहता है, और ये जो कोम्ब प्लेट्स है ये इनको मूवमेंट में हेल्प करता है. सो दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स. They have special locomotory organs which seriated comb plates. अच्छा, इनको हम कह तो रहे हैं कि रेडियल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट आई वुड लाइक टू से, देखो अब नीट में वो एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, बट बाय चांस कभी अगर दिखा तो एक्सेप्शन के केस में
I say that they have biradial symmetry. They have a biradial symmetry. That means उनमें bilateral symmetry भी है और radial symmetry भी है. दोनों type of symmetry इनमें दिखता है. ठीक है, ये याद रखोगे. और एक चीज है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. हाँ, डिप्लोब्लास्टिक है, ये सच बात है. बट बॉडी के बाहर डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? किसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म. और यहाँ पर क्या है, बॉडी वॉल के बाहर एक आउटर लेयर है विच इज नोन एज द एपिडर्मिस. उसके अंदर एक लेयर है विच इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस. तो एपिडर्मिस है बाहर का लेयर, अंदर का लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस, और इस बीच में और एक लेयर है विच इज द मेसोग्लिया. मेसोग्लाया है, इस हम कहते हैं कि वो डिप्लोब्लास्टिक है. अच्छी बात है. बट नॉर्मल जो निडारियंस में मेसोग्लिया दिखता है और इनमें जो मेसोग्लिया दिखता है ये थोड़ा अलग है, बिकॉज इनमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर्स है और मसल सेल्स है. सो दीज मेसोग्लिया आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल जो मेसोग्लिया है उससे थोड़ा अलग है क्योंकि इनमें एमीबोसाइट्स मिलता है. यू गेट एमीबोसाइट्स. एमीबोसाइट्स मतलब इररेगुलर सेल्स, और कुछ मसल सेल्स भी यहाँ पर मिलता है. और इसीलिए कभी कभी दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि एपिडर्मिस है, गैस्ट्रोडर्मिस है, बीच में मेसोग्लिया है. राइट, बीच में मेसोग्लिया है. ओके, बट कभी कभी यहाँ पर एमिबोसाइटिक सेल्स भी रहते हैं और मसल सेल्स भी रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कभी कभी एट टाइम्स द टिनोफोर्स दे आर कंसीडर्ड टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. They are not triploblastic, but they are considered to be triploblastic. Please try to understand this. They are not true triploblastic organisms. और इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं जो फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं कोलोब्लास्ट्स. Like this, that special type of cells which are required for the capture of food, इसको हम कहते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसो सेल्स. लैसो सेल्स और कोलोब्लास्ट सेल्स, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. और एक चीज है, एनसीईआरटी में तुम लोग देखोगे कि यस पीयूष सर किस चीज में हेल्प करता है सर? कोलोब्लास्ट प्लीज को फूड कैप्चर में हेल्प करता है. द कोलोब्लास्ट दे हेल्प इन द कैप्चर ऑफ फूड. खाने को, जैसे हम लोगों ने टेंटैकल्स का रोल देखा था, फूड कैप्चर में हेल्प करता है. सिमिलर रोल, द लैसो सेल्स ऑफ द कोलोब्लास्ट, सिमिलर टाइप ऑफ रोल. ओके सर. ओके, अच्छा. अब देखो एनसीईआरटी में ही तुम लोग देखोगे कि इनकम्प्लीट तो बोला है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बट मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनकम्प्लीट है, ये सच बात है, लेकिन कुछ some ctenophores have a complete digestive system. Some of them have a complete digestive system. कैसे? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक माउथ है. माउथ से जो एक कैनल जैसा निकलता है उसको हम कहते हैं स्टोमोडियम. क्या कहते हैं? स्टोमोडियम. इट इज नोन एज द स्टोमोडियम. और फिर वहां से इट एंटर्स अ स्पेशल लार्ज स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द स्टमक. और स्टमक के वहां से एक एनल कैनल है. एनल का कैनल में ऐसे दो पोर्स रहते हैं. The anal canal has two pores, so they have two anal pores. स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए दिस इज द schematic structure that I have drawn for you. So एक माउथ इज one of the openings,
it enters into the stomodium, which enters into the stomach, and then it enters into the two, it ends into the two anal pores. दो anal pores हैं, ठीक है. So कुछ में ये रहता है, it's not universally true, but it's present in some, and जिसमें रहेगा उसको हम कहेंगे they have a complete digestive system. But in generalization, हम बहुत टाइम में कहते हैं कि they have a incomplete digestive system. Please understand that. Okay. Any doubt till here? और एक चीज यहाँ पर No, याद sir. रखना, और एक चीज यहाँ पर याद रखना पड़ेगा. सपोज ये माउथ है, सपोज ये माउथ है, तो माउथ के ऑपोजिट साइड, माउथ के ऑपोजिट साइड में, माउथ जिस साइड में रहता है उसके ऑपोजिट साइड को कहते हैं एबोरल एंड, नोन एज द एबोरल एंड. माउथ के ऑपोजिट साइड में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, और इसको हम कहते हैं स्टैटोसिस्ट. तो काफी कुछ एक्स्ट्रा हमने पढ़ा है. एक्स्ट्रा मींस something which is not directly there in NCERT, but you need to know these. You need to know this. इसलिए ही मैंने ये बताया. ठीक है. I hope it is clear. Now let us revise it. मैं अब general characteristics revise नहीं करूंगा. I'm directly going into the specialized characteristics. तो पहली बात ये है कि इनको टीनोफोर्स क्यों बोला जाता है? So because they are comb bearing. Because the comb cell. कितने कोम प्लेट्स रहते हैं इनमें? So 8. 8. So 8. of this. 8. और इसके ऊपर क्या रहता है? So ciliated comb plate. 4 ciliated comb plates, cilia रहता है. And because cilia रहता है, so it helps in dash. What does it help in? Locomotion. It helps in the locomotion, correct है? Yes. Okay. अब हम, अच्छा एक पॉइंट मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो मैं I just forgot. जब सिंगल ऑर्गेनिज्म है, many a times it has been seen ऐसे single, and I'll be using a different color board. ऐसे जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे कंबाइन करते हैं, 1 3 4, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे कंबाइन करके फिर दे स्टार्ट emitting light, and this process is known as bioluminescence. The process of generating or emitting out light, the property on the virtue of which the living organisms can emit light, then that is known as bioluminescence. ये याद रखो. Okay, चलो वापस आते हैं. Digestion, extracellular or intracellular? Intercellular. Sir, intracellular, sir. Intracellular mainly, कभी-कभी extracellular देखा जाता है. Okay, now digestive system, is it complete or incomplete? So it is. So it is both, sir. Sometimes it's so. Generally, अगर generalize करो तो फिर incomplete है, लेकिन कभी-कभी But या It's complete. complete होता है. उसको थोड़ा explain करो. Mouth रहता है उसके बाद in Pseudomodium. Stomodium enters into a region which is known as, Stomach. and फिर stomach से 2 openings रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? 2 anal pores. 2 anal pores. They have 2 anal pores, correct. अच्छा, what about the plasticity of these organisms? So diploblast. diploblastic. Diploblast. They are diploblastic, but at times they are considered to be triploblastic. Why? Sir, when muscle cells are present in muscle. Meso contains some ambocytes and muscle cells. Yes, absolutely. ठीक है. So these are the things. और mouth जिस end में रहता है उसके opposite end को हम क्या कहते हैं? Aboral end. Aboral cells. एक special organ रहता है उसको हम what is it known as? Statocyst. Statocyst. ठीक है. And the process, the property of emitting light after coalescing together, it is known as? Bioluminescence. ठीक है everyone.
I hope you don't have any doubt in this phylum. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, लास्ट फाइलम आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्लैटीहेल्मिन्थस। तो वही यू नो द सेम क्वेश्चन अगेन जो मैं हर क्वेश्चन में हर फाइलम में पूछता हूँ कि इसको प्लैटीहेल्मिन्थस क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लैटिस। So obviously these are flat walls. Ventral lenses, they are flattened. So these first characteristic is these are dorso-ventrally flattened. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। बॉडी सिमेट्री बाइलैटरल है, लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तुम लोग मुझे बताओ, अगर ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो फिर इसमें should it have a coelom or should it not have a coelom? It's a triploblastic organism, so what about coelom? It should have a coelom. It should have a coelom, either a pseudocoelom or a true coelom, but it does not. It is an acoelomate. So this is a exception. Why? I will explain. I will explain. Just note this as of now. Digestive system incomplete. Digestive system है. Circulatory system और respiratory system नहीं रहता है. Segmentation बिल्कुल नहीं रहता है. Sex separate नहीं. Sexes are not separate. और ऑर्गन लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम भी दिखता है, सो दैट इज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डन। शैल आई मूव ऑन? Now I come to the special characteristics. The special characteristics में पहले ही जो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो है कि they are dorsoventrally flattened. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं they are generally endoparasites. So what do you mean by dorsoventral? डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी। मैंने फर्स्ट क्लास में ही तुम लोगों को समझाया था कि डॉर्सल साइड किसको कहते हैं, वेंट्रल साइड किसको कहते हैं। आई हैड एक्सप्लेन दिस। सो द बेली साइड एंड द ऑपोजिट साइड, दोनों साइड से ये फ्लैटेंड है, इसीलिए हम इसको डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड कहते हैं, राइट? Yes, sir. ओके, सो दे आर एंडोपैरासाइट्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी और कुछ एनिमल्स में भी। बिकॉज ये एंडोपैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स है तो इसीलिए उनमें कुछ चीज रहना चाहिए ताकि वो होस्ट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर पाए। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स में हुक्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे हुक्स या फिर सकर्स। They have specialized structures which are known as hooks and the suckers, so that they can suck in, the nutrients from the organisms. जिसके ऊपर ये लोग, जिसके अंदर ये लोग रहते हैं, उनमें से so that they can suck, right? अच्छा।
So endoparasites means they live inside the एंडोपैरासाइटिक, बॉडी के अंदर. okay sir. ओके अब एक चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया भी था कि इनमें क्या रहता है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. सो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, हैव एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और इस बीच में मेसोडर्म भी है. तो इसका मतलब तो होना चाहिए कि यू नो द अल्टीमेट स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक दिस: बॉडी वॉल, गट वॉल, और बीच में ऐसे गैप रहना चाहिए. They should have a gap and hence they should have a coelom. लेकिन देखा जाता है, it has been seen, और सीलोम रहना भी चाहिए. They should have a coelom. लेकिन ये जो स्पेस रहता है इनके बीच में, this space, it is being filled by special type of cells which are known as the parenchymatous cells and mesenchymatous cells. ठीक है. So मैं फिर से रिपीट करता हूँ. ये हो गया बॉडी वॉल, सॉरी आई विल ड्रॉ इट इन अनदर कलर. ये हो गया बॉडी वॉल, ये हो गया गट वॉल. दोनों के बीच में गैप होना चाहिए. होता भी है, होता भी है. सो अगर होता है तो फिर व्हाई आर दे एसिलोमेट? बिकॉज ये जो गैप है, उस गैप में इट गेट्स फिल्ड अप, द गैप गेट्स फिल्ड अप विद स्पेशल टाइप ऑफ parenchymatous and mesenchymatous cells. और ये जो parenchymatous और mesenchymatous cells है, इनका एक फीचर रहता है, ये पानी को अपने तरफ खींचता रहता है. इट अट्रैक्ट्स वाटर, और पानी इस जगह पर भर जाता है. द वाटर गेट्स फिल्ड इन दिस स्पेस, एंड बिकॉज इट्स अ water filled mesenchymal and parenchymatous region, that is why in spite of the fact that it should have had a coelom, it does not have a true coelom. Did you understand my point? Yes sir. Okay, it should have had a coelom because, Yes, sir. yeah, because it was a triploblastic organism, but it does not have a coelom because the region, it gets filled up with mesenchymatous and parenchymatous cells, and these cells, they form a vascular system over here which attracts water. पानी को attract करता है अपने तरफ, and because it is attracting water towards itself, that is why the region gets swollen or filled up with water. और इसको हम कहते हैं the water circulatory, sorry, the water skeletal system, या फिर जिसको हम और ये जो पानी इस जगह पर भर जाता है, इसके वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो उस ऑर्गेनिज्म को एक टफनेस प्रोवाइड करता है. मतलब सपोज एक बलून है, बलून के अंदर तो खुद का कुछ शेप नहीं है, लेकिन उसके अंदर पानी भर दो तो उसका एक शेप बन जाता है. यहाँ पर भी वही है कि बिकॉज पानी उसके अंदर फिल्ड रहता है, इसीलिए it gets a shape. That means this is a skeletal system which is not made up of a true skeleton, but it is made up of water. It's on the virtue of the water. और इस type of skeletal system को हम कहते हैं, this type of a skeletal system is known as hydroskeleton. So in spite of the fact that they should have had a coelom, they do not have a coelom because the place gets filled up with water containing parenchymatous and mesenchymatous cells, which leads to the formation of a hydroskeleton which provides the body with rigidity. Clear everyone? Yes sir. एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ. एक ऑर्गेनिज्म है, सब ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं दिखता है, लेकिन there is one organism which is known as planaria. उसके बॉडी के किसी भी पोर्शन को अगर तुम काट दो, सपोज दिस इज द बॉडी, किसी भी पोर्शन को काट दो तो वहां से बाकी पूरा ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो सकता है. सो दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रीजेनरेशन. They have a property of regeneration, high capacity of regeneration. The body को अगर तुम काट देते हो और a certain part of the body gets
cleaved off, the entire organism can be generated. अच्छा, डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लेकिन बहुत सारे लार्वल स्टेजेस दिखते हैं यहाँ पर. You do not need to know the details of the larval stages, but just one thing that you definitely need to know is they have varieties of larval stages. बहुत से एक larval stage नहीं कि ये young one है और यहाँ से adult बन गया. No, it's not like that. They have a variety of larval stages. Development काफी elaborate होता है, but you do not need to know the details of this. Clear? और एक बहुत ही important characteristics रहता है इनमें, which is they have special cells which are known as the flame cells. Special characteristics. Flame cells किस काम में आता है? Excretion के काम में आता है. बॉडी में जब अमोनिया बनता है, अमोनिया को बॉडी से रिलीज करता है, या फिर अगर any gaseous waste is formed, उसको भी बॉडी से रिलीज करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. मतलब बॉडी के बाहर कितना पानी अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन दैट बॉडी के अंदर का पानी का अमाउंट रेगुलेट कर पाता है. So that is the role of flame cells. Clear everyone? Any doubt till here? No doubt. So let us revise. पहली बात, platyhelminthes को platyhelminthes क्यों बोला जाता है? Why is it known as platyhelminthes? Because they are dorsal. Yeah, because they are dorsoventrally flattened. ये कहाँ पर रहता है? What is their habitat and habitat? marine. No, they're endoparasites. Most of them are endoparasites. So because they are endoparasites, marine, yes, habitat is marine, habit is endoparasitic. Okay, endoparasitic. So because by endoparasitic है, so that it can absorb nutrients from the host's body, उनमें specialized cells या structures रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? So what did you say? क्या कहते हैं? So can you repeat? Because it stays inside the host, it has specialized structures which can absorb nutrients from the host. What are these known as? So Hooks or hooks and stomachs. Stomach means suckers. Yes, sir. Suckers, suck करने के लिए. Hooks and suckers. What type of symmetry do they have? Bilateral. Bilateral. Bilateral symmetry. Level of an organization. organ Or organ system level of organization. Yes. Fertilization अंदर होता है या बाहर होता है? Internal fertilization. Sexes not separate. अच्छा, उसके बाद digestive system Incomplete. incomplete. Segmentation है क्या कोई? No, sir. No, sir. No, sir. What type of अच्छा plasticity? Triploblastic. So like should it be coelomate, acylomate or pseudocoelomate? Acylomate, sir. but it's acylomate. Acylomate. Why? Why? Because it has has मुझे सुना ही नहीं दिया, फिर से बोलो. so because between the body wall and the gut wall it has parenchymatous and mesenchymatous cells. And what does that do? What is the importance of this? They attract water. So they are osmotically active cells. They attract water. तो पानी वहां पर भर जाता है, तो इसके वजह से एक स्पेशल सिस्टम बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? The hydroskeleton. water skeletal system. हाइड्रोस्केलेटन या वाटर स्केलेटल सिस्टम, जो बॉडी को एक रिजिडिटी या सपोर्ट. So those are the same thing, right? सॉरी, Hydroskeleton and the water skeletal system are Yeah, the same thing. या उसी को कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन को ही वाटर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. पानी से बना हुआ स्केलेटल सिस्टम, पानी है इसीलिए स्केलेटल सिस्टम, हाइड्रोस्केलेटन. या okay, and they also have specialized cells for osmoregulation and excretion. What are they known as? The flame cells.
flame cells. Planaria has a special capacity. What is that? The high Regeneration. Region. High regeneration. Okay, I give you one homework before I end the class. आज यहाँ यहीं तक हम पढ़ेंगे. The homework is हमने 4 phylums अभी पढ़े हैं. What are these? Porifera, Sir, Porifera, Coelenterata, and Cylindria, Ctenophora. Ctenophora, and Right. Platy. तुम्हारा होमवर्क ये है कि थोड़ा सा जो जो कैरेक्टरिस्टिक बोला है उसको स्टडी करोगे, करके एक तो एग्जांपल्स लिखोगे, पॉइंट नंबर 1. और सेकंड जो चीज डेफिनेटली करोगे वो है कि जो पॉरीफेरेंस है उससे एडवांस्ड क्या है, यू नो व्हाट इज द एडवांसमेंट इन द सिलेंटेराटा. जो तुम्हारा यू नो टीनोफोरा है, हाउ इज इट एडवांस्ड ओवर द what can I say, the Nidarians. जो तुम्हारा Platyhelminthes, what is the advancement over the क्या कहते हैं Ctenophora. एडवांसमेंट मतलब स्पेशलाइज, स्पेशल क्या है या फिर ज्यादा डेवलप क्यों है, क्योंकि Porifera is the lower phylum and Platyhelminthes is the higher phylum. तो ज्यादा डेवलप्ड है वो. तो ये ज्यादा डेवलप्ड चीज क्या है, क्यों Platyhelminthes बाद में आता है एंड क्यों Porifera पहले आता है. डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर डेफिनेटली कुछ यू नो एडवांसमेंट हो रहा है. सो व्हाट इज 1 or 2 पॉइंट्स ऑफ एडवांसमेंट. ये चारों फाइलम्स को कंपेयर करके लिखोगे कि Poriferans से Cnidarians क्यों एडवांस्ड है, Cnidarians से Coelenterates क्यों ज्यादा एडवांस्ड है, Coelenterates से Platyhelminthes क्यों ज्यादा एडवांस्ड. और एग्जांपल्स पढ़ोगे. और बाकी आज के क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है वो तो मैंने क्लास में ही रिवाइज करवा दिया है. क्लास के पहले दिन मतलब सॉरी द डे बिफोर द क्लास, द नेक्स्ट क्लास, इसको एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है? एनी डाउट एनीवन? So I have a question. So you will not teach Plant Kingdom? I think sir or madam, some other teacher will teach you. Some other teacher is going to teach you. I'll not teach Plant Kingdom. I'll teach botany, but some other chapters of botany, not Plant Kingdom. Okay, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ. मुझे पता है थोड़ा अनइंटरेस्टिंग लग सकता है, बट आई विल ट्राई जितना हो सके इंटरैक्टिव रखने की मैं कोशिश करूंगा क्लास को, सो दैट वी कैन स्पीक एंड वी कैन. बताना चाहता हूँ, मैंने बताया है फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ये जो चैप्टर है इसमें बहुत डिटेल्स हो सकता है. बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स, ये बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स में भी तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा. यू नीड टू ट्रस्ट मी, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ोगे, क्वेश्चंस यहीं से आएगा. इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, तो बात की बात है. पहले ओवरऑल पढ़ लो, फिर जो एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है वो हम पढ़ेंगे. जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, यू नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन द टीचर. मैं बार बार ये बता रहा हूँ. सो जस्ट ट्रस्ट मी, ब्लाइंडली ट्रस्ट मी, यू विल गेट क्वेश्चंस कॉमन. हर साल जितना मैं पढ़ाता हूँ, जहां पर मैं एनसीईआरटी वाइज पढ़ा रहा हूँ उसको उतना ही पढ़ोगे, और जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करो. ठीक है? और जितना मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके पढ़ाया है वो मैं तुम लोगों को सेंड भी कर दूंगा एज अ पीडीएफ, सो दैट यू कैन जस्ट कंपेयर इट. क्लियर? ओके, सो कैन आई एंड द क्लास? Right. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, good Thank you, night. sir. Thank you, sir. Yes, sir. Good night.